Dear students, we are going to discuss applications of Ellingham diagram. The first one is extraction of copper from cuprous oxide, copper 1 oxide. In a Ellingham diagram, the Cu2O copper 1 oxide line is almost at the top. So it is quite easy to reduce oxide ores of copper directly to the metal by heating with coke. However, most of the ores are sulfide and some may also contain iron. The sulfide ores are roasted, smelted to give oxides. Cu2SO2 changing into Cu2O plus SO2. The oxide can then be easily reduced to metallic copper using coke. Cu2O plus coke. Coke reduces Cu2O to Cu and takes oxygen and liberated as CO. बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ लिंगम डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर 1 ऑक्साइड। लिंगम डायग्राम को देखने से पता लगता है कि जो Cu2O की फॉर्मेशन वाली कर्व है वो ऑलमोस्ट एट द टॉप है। तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करना बहुत आसान है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ चूज़ किया जाता है इस केस में कोक, ड्यू टू इट्स चीप नेचर। पर प्रॉब्लम एक और है कि ज़्यादातर कॉपर की ओर में Cu2S सल्फाइड होता है, सल्फाइड ओर होती हैं। तो इसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय रोस्टिंग। जो ऑक्साइड हमें मिलता है उसमें हम कोक डाल देते हैं। कोक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कॉपर में और कोक खुद कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उड़ जाता है। ये जो होल प्रोसेस है कॉपर 1 ऑक्साइड से कॉपर हासिल करने की, इस प्रोसेस में एक्चुअली द ओर इज हीटेड इन ए रेवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका। सिलिका क्या करती है, आयरन के ऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है और आयरन सिलिकेट जिसको स्लैग कहते हैं बना लेती है। स्लैग हल्का होता है, लाइटर होता है और उसको बाहर निथारा जा सकता है, निकाला जा सकता है, स्किम्ड ऑफ किया जा सकता है। तो FeO को एलिमिनेट किया जाता है एंड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर माटी। दिस contains Cu2S and Fes. Copper matte is then charged into silica-line converter. Some silica is also added and hot air blast is blown to convert the remaining FeS2, FeO and Cu2S, Cu2O to metallic copper. The following reactions takes place. FeS plus O2 changing into FeO plus SO2. FeO again is treated with SiO2 changing into FeSiO3. Cu2S plus O2 changing into Cu2O SO2. Cu2O plus Cu2S combined gives the copper and sulfur dioxide gas is liberated. The solidified copper obtained is blistered appearance, has blistered appearance due to the evolution of SO2. So it is called a blister copper. जो हमें इसमें कॉपर मिलता है उसकी ब्लिस्टर छाले जैसी अपीयरेंस होती है क्योंकि SO2 लिबरेट होती है उसके कारण, इसलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर भी कहा जाता है। Application of Lingam diagram is extraction of zinc from zinc oxide. The reduction of zinc oxide is done using coke. This choice is also provided by the application by the use of Lingam diagram because the curve of formation of CO2 lies below the curve of formation of oxide of zinc. The temperature in this case is higher than that in case of copper. For the purpose of heating, the oxide is made into briquettes with coke and clay. ZNO is reduced by coke to zinc and self C is liberated as CO.
द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिल। जो दूसरा एप्लीकेशन है एलिंघम डायग्राम का वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे भी कोक को रिड्यूसिंग एजेंट काम किया जा सकता है, क्योंकि कोक के ऑक्साइड की फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है वो जिंक के फॉर्मेशन के ऑक्साइड वाली इक्वेशन से नीचे लाई करती है एलिंघम डायग्राम में। टेम्परेचर इस केस में काफ़ी हाई चाहिए होता है, तो इसमें होता क्या है, जिंक के ऑक्साइड को कोक रिड्यूस कर देता है जिंक में और खुद लिबरेटेड हो जाता है एज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो जिंक मेटल है वो डिस्टिलेशन के द्वारा उसको प्यूरिफाई किया जाता है और अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। जो थर्ड एप्लीकेशन है लिंगम डायग्राम का वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। Oxides of iron after concentration through calcination roasting are mixed with limestone and coke and fed into a blast furnace from its top. Here the oxide is reduced to metal. Thermodynamic help to understand how coke reduced the oxide and why this furnace is chosen. Following reactions takes place in blast furnace. There are 9 reactions. We will have to remember these reactions because many times these reactions asked in the examination. बच्चों, जो तीसरा एप्लीकेशन है लिंगम डायग्राम का वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं उनकी पहले कंसंट्रेशन की जाती है, फिर कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके उसमें लाइमस्टोन डाला जाता है, फिर कोक डाला जाता है, फर्नेंस में डाला जाता है, हीट किया जाता है टॉप से। हेयर द ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू मेटल। थर्मोडायनेमिक्स बताती है हमें कि हाँ कैसे कोक रिड्यूस करता है ऑक्साइड को और वाई ये फर्नेंस चूज क्यों की गई है। थर्मोडायनेमिक्स ही लिंगम डायग्राम ही हमें इसके बारे में बताता है। फर्नेंस में 9 तरह की रिएक्शनें हो रही हैं जो नीचे दिखाई गई हैं, तो वो हमने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। Dear students, we will have to keep in mind the following things in the extraction of iron from its oxide. ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं आयरन की उसके ऑक्साइड से। तो जो हमने लाइमस्टोन को फर्नेंस में डाला है डिकम्पोज हो जाता है वो CO में। लाइमस्टोन इज डिकम्पोज टू CO विच रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटी ऑफ द ओर एज स्लैग। जो हमारा लाइमस्टोन है वो सिलिकेट की इम्प्योरिटी को निकाल देता है बिकॉज सिलिकेट के साथ मिलके वो स्लैग बना लेता है। स्लैग जो है वो हल्का होता है और उसको स्किम्ड ऑफ किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन 4% कार्बन and many impurities in smaller amounts such as sulfur, phosphorus, silicon, manganese. This is known as pig iron and cast into variety of shapes. जो हमारा ये आयरन है पिग आयरन, इसमें 4% कार्बन होती है। ये इम्प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो थर्ड पॉइंट है कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय melting pig iron with the scrap iron and coke using hot air blast. It has slightly lower carbon content and is extremely hard and brittle. जो कास्ट आयरन है इसमें कार्बन का कंटेंट है वो पिग आयरन से थोड़ा कम होता है, इसमें 3% होता है और ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। फोर्थ पॉइंट है रॉट आयरन और मेलिएबल आयरन भी इसको कहते हैं, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन एंड इज prepared फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग impurities in a reverberatory furnace and with hematite. This hematite oxidizes the carbon to carbon monoxide. दिखाया गया है इक्वेशन में Fe2O3 प्लस कार्बन, तो कार्बन को Fe2O3 हेमेटाइट निकाल देता है,
की फॉर्म में CO लिबरेट हो जाती है। बच्चों, जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की वो है रॉट आयरन या मेलिएबल आयरन। तो इसमें सबसे कम कंटेंट होता है कार्बन का। इसको बनाया कैसे जाता है? इसको इसमें जो है जो अपना रॉट आयरन है उसके अंदर हेमेटाइड डाल देते हैं। हेमेटाइड कार्बन को निकाल देता है एज कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो फिफ्थ पॉइंट है लाइमस्टोन इज एडेड एज फ्लक्स एंड सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस आर ऑक्सीडाइज एंड पास्ड इनटू द स्लैग के रूप में पास हो जाते हैं ये। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम स्लैग बाय पासिंग थ्रू रोलर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी इन द रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल सॉल्ट। Electrolysis is done. Such methods are based on electrochemical principles which could be understood through the equation that is delta G naught is equal to minus NF E naught। इस इक्वेशन को हम जानते हैं, +1 में पढ़ी है ये। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E naught क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल फॉर्म्ड इन द सिस्टम। More reactive metal have large negative values of the reduction potential। इस बात का भी हमें पता है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था +1 में। लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी नेगेटिव थी। सो देयर रिडक्शन इज डिफ़िकल्ट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो होते हैं, इनका अपना रिडक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, हाई रिएक्टिव मेटल हैं जो। इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 E नॉट वैल्यू corresponds to a positive E naught and consequently negative delta G naught in the above equation। जो ऊपर इक्वेशन है delta G naught is equal to minus NFE E naught cell E naught। इसमें अगर E naught पॉजिटिव आ जाती है तो हमारे पास delta G naught नेगेटिव आएगा। देन द अब रिएक्शन हो जाएगी ये पॉसिबल। देन द less reactive metal will come out of the solution and more reactive metal will go into the solution। तो Cu एक्वस था, आयरन क्या था? सॉलिड। तो क्या हो जाएगा अब? कॉपर किस में आ जाएगा? सॉलिडिफाइड में। और आयरन किस में चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा। नोट नंबर 1, इन द सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस द N positive ions are discharged at negative electrode cathode and deposited there। Precautions are taken, consider the reactivity of metal produced and suitable material are used as electrodes। Sometime a flux is added for making the molten mass more conducting। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो मेटल की अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो फिर हमें जो इलेक्ट्रोड है वो सावधानी से चूज़ करना है, ठीक है। सम टाइम हमें कंडक्टिंग बढ़ाने के लिए बाहर से मोल्टन मास फ्लक्स एडिड करना पड़ता है फ्लक्स को। तो इस टॉपिक के बारे में इतना ही, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। जो नेक्स्ट है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम जो प्यूरिफाइड Al2O3 है उसको मिक्स करते हैं Na3AlF6 एंड CaF2 विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्स एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। तो बेटा ये ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं दोनों Na3AlF6 एंड कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोरस्पार क्यों ऐड किया जाता है? तो पेपर में आया है क्वेश्चन। तो एक तो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है ये, और कंडक्टिविटी को क्या करता है? इंक्रीज करते हैं ये दोनों। द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। स्टील कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड्स आर यूज्ड। द ग्रेफाइट एनोड इज यूजफुल हेयर फॉर द रिडक्शन ऑफ द मेटल। द ओवरऑल रिएक्शन दिखाई गई है। Al2O3 जो हमारी कार्बन है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है Al में और खुद CO2 के रूप में रिलीज हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज वाइडली नोन एज हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस।
During the extraction of aluminium from Al2O3, the electrolysis of molten mass is carried out in electrolytic cell using carbon electrodes. The oxygen liberated at anode react with the carbon of anode producing CO and CO2. जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से एनोड की रिएक्ट करती है और CO और CO2 बनाती है, और जो एनोड है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिग्रेड ख़त्म होता जाता है, इसलिए एनोड को आफ्टर सम टाइम वी विल हैव टू चेंज करना पड़ता है. दिस वे फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्नट अवे. 1 किलो अगर सोडियम मिला है तो आधा किलो कार्बन हमारा जल जाता है. इंपॉर्टेंट बात है ये. द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस आर कैथोड पे क्या होगा, Al3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा. एनोड में कार्बन जो है रिएक्ट करता है, CO और CO2 बन जाती हैं. टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन इज यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स. A very common example of extraction based on oxidation is the extraction of chlorine from brine. Chlorine is abundant in seawater as common salt. The equation involved is Cl negative plus water gives OH negative, H2 and Cl2. In this way we get chlorine. The delta G naught for this reaction is plus 422 kilojoule. When it is converted to E naught using delta G naught minus NFE naught, we get E naught equal to minus 2.2 volt. Naturally, it will require an external EMF that is greater than 2.2 volt, but the electrolysis requires an excess potential to overcome some other hindering reactions. Thus, Cl2 is obtained by electrolysis giving out H2 and aqueous NaOH as byproducts. बच्चों देखो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन जो मेनली यूज होता है नॉन मेटल के लिए इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्रीन. इक्वेशन आपको दिखाई ही गई है. तो डेल्टा G नॉट इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन अपने आप तो पॉसिबल है नहीं. तो जब डेल्टा G नॉट की वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, डेल्टा G नॉट माइनस NFE ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास जो E नॉट आता है माइनस 2.2 वोल्ट. तो माइनस 2.2 वोल्ट आता है, तो हमें जो एक्सटर्नल EMF देनी पड़ेगी वो 2.2 से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करने के लिए, Cl2 को हासिल करने के लिए. तो Cl2 इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. H2 और NH हमें बाई प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं इसमें. लास्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विद Cn नेगेटिव. दिस इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Ag changing into Ag positive, Au changing into Au positive. The metal is later recovered by displacement method. तो जो हमारा सोना है Au है उसको Cn नेगेटिव डाल देते हैं उसमें, वाटर O2 ऑक्सीजन में. तो जो हमारा गोल्ड है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक्वस फॉर्म में चला जाता है, और जो एक्वस फॉर्म में गोल्ड गया है अब उसको जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट करा दी जाती है, तो हमारा गोल्ड सॉलिडिफाई हो जाता है. तो इस रिएक्शन में जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है. तो सेम विल बी हैपन विद Ag आल्सो. इट इज ऑल आउट अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर.